Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 16th October, that is Monday, and we are here with the Hindu analysis of Monday. So these are the two important articles. I hope you are aware. Israel readies for attack as a million people evacuate, and also these were in the news. Then a new investment slowed again in Q2 of 2023-2024 survey. So these are the two important articles. We will be discussing it. Kuch aur sports related, for example, Afghanistan registers a stunning win over England and all. Then this is an editorial. We will be discussing it in editorial section. So am I audible? Awaaz aa rahi hai meri? So if I am audible, just write in the comments. Yes, sir, you're audible. Okay, so that is what it was in the news. I hope you are aware. So Israel have said that it will be attacking the North Gaza and also these things were in the news and all. So I hope you are aware these things have been coming in the news in the last 6-7 days and all. Now, there are some questions for you. I want to know whether you can answer it or not. The first question is, which of the following do not have, जब भी not आए तो careful हो जाना है, ठीक है? Which of the following do not have borders with Israel? Your options are Jordan, Syria, Egypt, Saudi Arabia. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है कि इजराइल का इस चार में से कौन से मुल्क से बॉर्डर नहीं रखता है. Because Israel is in the news, so they can ask the geography associated with it. एक CLAT 2020 में क्वेश्चन ही पूछा था Israel's basic law से related. I hope you are aware of that as well. So again they can ask in detail about it, the history of it. ठीक है. So what is the right answer to this question? कुछ लोग 2 बता रहे, कुछ लोग 4 बता रहे. Yes. The right answer is actually yes. Nandana, Nandita, 𝗟𝗄 𝗙𝗂𝗏, yes, 𝗟𝗲, you all are right. So the right answer is Saudi Arab do not have borders with Israel, whereas Jordan, Syria, Egypt, Lebanon, these countries have border with Israel. Okay, so here the right answer is D. Saudi Arabia is the right answer to this question. So here is India. This is Israel. Let me show you. So this one is actually Israel. Border, Egypt is border, Jordan is having border, Syria, Lebanon, सब में border, but Saudi Arab, this is Saudi Arab, it do not touch Israel. Okay, so Saudi Arab यहाँ पर है, this one. Sorry. Okay, so it do not have borders. So D is the right answer to this question. Yes, 𝗟𝗏 𝗨𝗏 𝗏 𝗟𝗏, you all right. The next one is new investment slowed again in Q2 of 2023-2024. अब देखो ये चीजें ना वैरी करती है, मतलब actually these things keeps on varying. So अब अगले क्वार्टर में जाओगे तो कुछ और परसेंटेज आएगा. इतना परसेंटेज वगैरह याद नहीं करना है बिकॉज दिस विल कीप ऑन चेंजिंग ना, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज Q2. अच्छा, इसका कौन सा मंथ कौन सा ईयर हुआ? Q2 ऑफ FY 2023-24, राइट? ये कौन सा मंथ और कौन सा ईयर हुआ? प्लीज टेल मी, बिकॉज आई हैव टॉट इन द इकोनॉमिक्स पार्ट 1 इन द पेड क्लासेस. मैंने ये सब बताया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 पहचानना, फिस्कल ईयर. इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, Q2 of FY 24, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं. यस, वो ऐसे भी लिख सकते थे, इसका मतलब यही होता है सेम. सो विच मंथ एंड विच ईयर? यस, वेरी गुड नंदना एंड नंदिता, वेरी गुड. सो द राइट आंसर इज जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑफ 2023. सो दिस इज Q2 ऑफ FY 24. ठीक है. यस, 𝗟𝗏 द फ्यूचर, यू आर राइट. हाँ, सो आपको ये पता, देखो यहाँ लिखा हुआ भी इनफैक्ट, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY 2023-2024, है ना. तो कभी ड्रॉप करेगा, कभी राइज होगा. दीस थिंग्स विल कम इन द न्यूज, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया, ताकि जब आप पढ़ो Q1, Q2, Q3 अगर ऑप्शन में लिखा हो या पैसेज में दिया हो, सो यू शुड नॉट गेट पैनिक कि सर ये क्या आ गया. ठीक है. और ये भी बताया था Q1 और Q2 मिला के H1 होता है, हाफ ईयरली 1, है ना. फिर Q3 और Q4 मिला के हाफ ईयरली 2 होता है ना. सो दीस थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट, है ना. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. नाउ मैंने कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि देयर आर हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? कोई बता सकता है हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज आर देयर? एंड ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? योर ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग, क्रूड ऑयल. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? बताइए कि इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज. और कितने कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया में, अगर आप ये बता दोगे सो आई विल बी वेरी हैप्पी. यस, व्हाट इज द राइट आंसर? गुड. हाँ,
Kavya, Priya, Nandana, Haripriya, Mangal, you're right. Yes, alcohol manufacturing is the right answer to this question. C is the right answer. And कितने total core industries हैं इंडिया में? So we are having 8. Yes, Nandana and Nandita were right. So we are having 8 core industries. ये मैंने paid classes में पढ़ाया है. Electricity, steel, refinery, crude oil, coal, cement, natural gas, fertilizer. And alcohol manufacturing is not one of the core industries. Okay, थोड़ा सा common sense भी अगर आप लगाते तो आप आंसर कर सकते थे. So C is the right answer. Yes, C is the right answer. Okay, we'll be having today at 6 p.m. जैसा कि आपको पता है every Monday. So on our app we have a revision series where I revise the Hindu analysis question answers, है ना? So download our app, go to CLAT section, and today at 6 p.m. आज 6 बजे मुलाकात होगी. We'll be having a revision series, है ना? Important current affairs question from newspaper last 4 months. We'll be discussing it today. Okay, yes. And this is the test series for 2024. जो लोग भी attempt कर रहे हैं, please attempt all of them in online mode, है ना? So that would be very, very beneficial for you. And this is for 2025 course. If any of your friend junior is preparing for the next year, she can join it. Call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. Okay, so let's start with this editorial, Israel-Hamas conflict and 𝗟𝗂𝗴𝗋 analysis. Okay, so it has been written by Mr. 𝗟𝗂𝗴𝗀 and he is former permanent representative of India to United Nations. Acha, can you please tell me who is the current permanent representative of India to United Nations? कोई बता सकता है? Current permanent representative of India to United Nations. What is the right answer? So I'm waiting for it. Okay. Now he's talking about actually Israel-Hamas conflict and 𝗟𝗂𝗴𝗋 analysis. So 𝗟𝗂𝗴𝗋 is actually a Palestinian professor. So and he's a former president of Al-Quds University in Jerusalem and all. तो इन्हीं के analysis को sorry. Okay. So इन्हीं के analysis को 𝗟𝗂𝗴𝗋 is actually a Palestinian professor. And he is actually explaining his analysis in this article. ठीक है, उन्हीं के article को, उन्हीं के explanation को यहाँ बता रहे हूँ. ठीक है. The current India's permanent representative to United Nations is Miss Ruchira Kamboj. ये पता होना चाहिए. This is important. Yes, Nandana, Nandita, Haripriya, Karthik, you all are right. हाँ. Yes, जी are all. हाँ. Okay, so he's talking about it. ये 𝗟𝗂𝗴𝗋 which is being quoted here, है ना, in this article. या मैं दिखाऊंगा इनका भी quote. Okay, so sooner or later experts and military observers will busy themselves with analysis and holding forth on one who won the war and all. So ये बता रहे हैं कि this Israel-Hamas war is happening and all. So who will win and all. तो यही सब चीज़ आपको पता है. From 7th October the war started and all. The question of how Israel was caught unaware and all these other things. So prima facie Hamas appears to have done better and all. तो यही सब वो बता रहे हैं. अब इसमें इतना detail नहीं जाना. That is his analysis and all. So when the writer lived in Gaza from 1977. तो बता रहे हैं कि अच्छा ये खुद रहे हैं 2 साल 1997 से 1999 in Gaza. So that is what he's saying. Most people were convinced that Israel had something to do with Hamas creation and all. These things he's saying and all. That the mighty state of Israel, the strongest power in the region, had to officially throw a decision and all. अब चलो ये सब अपना उनका ओपिनियन है वो बता रहे हैं. ठीक है, अब ओपिनियंस तो इतना पूछेगा नहीं एग्जाम में. But facts वगैरह ज्यादा पूछते हैं ना. So which of the following is the administrative center of Palestine? Your options are Gaza, Ramallah, Amman, Eilat. What is the right answer to this question? Prima facie का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा पूछ रहा. In the first instance समझ लो, ये ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है, उसको कहते हैं prima facie. ठीक है, होता है ना किसी आदमी को prima facie case appears to be like that, ऐसे बोला भी जाता है ना. यानी first case में या first appearance में ऐसा लग रहा है. Okay, that's we use the word prima facie. At the first sight, yes. What's the right answer? Yes, the right answer is Ramallah. B is the right answer. Yes, Mangal, Raul, Nandita. Actually, capital word actually इसलिए हमने नहीं लिखा because there is a dispute that some of them claim that it should be Jerusalem. तो इसीलिए administrative center word use किया गया. So the right answer is Ramallah. So I have told you this is West Bank and this is Gaza. So here is Ramallah and all. Okay. So just have an idea. Yes, Jerusalem limited recognition है. So basically administrative center for all practical purpose Ramallah is the capital. Prima facie मतलब seems to be in the first instance कह सकते हो है ना. Yes, good. Okay, Hamas has inflicted a most blow to the Palestinian Authority in Ramallah. उसी के बारे में बता रहे. Ruled by Palestinian Liberation Organization, more specifically by Fatah Party. आपको पता होगा जो कि ये वाला जो रीजन है
दिस रीजन एक्चुअली इसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन लिखा ना PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रूल्ड बाय फतह अल फतह पार्टी इज देयर ओके और गाजा इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय हमास इस तरह कुछ है समथिंग ओके सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट सो महमूद अब्बास इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन जो यही जो प्रेसिडेंट है ना महमूद अब्बास ओके सो दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट फैक्ट है तो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दे फैक्ट वगैरह एंड ऑल है ना हमास फॉलोइंग द वेस्ट बैंक विल इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड ऑल तो ये सब बता रहे हैं so these are the things he's talking about in military terms Israel will of course prevail so military point of view se matlab technology point of view se of course Israel will be ahead and all so it earlier said that it will be containing Hamas now it is saying it will eliminate it तो पहले जो गोल था इसराइल का कि हमास को कंट्रोल करना बट नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड eliminated these are the things being talked about and all who lost in the war now बात ये कि जंग में हारा कौन the people on both the sides innocent civilians would pay heavily for the bloodthirstiness of leaders on both the sides तो मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि जब भी वॉर होती है तो दोनों साइड में जो कॉमन मैन होता है जिसका शायद कोई गलती भी ना उसको पता भी नहीं हो ठीक से so innocent civilian citizens would pay heavily for the bloodthirstiness so that is what he is saying कि the common man who are actually dying because of the wars and all the missiles from here and there they are actually the losers कौन हारा तो कॉमन मैन आम जनता that is what he is talking about but it is undeniable that the price for the war will be paid by ordinary people अब जो वॉर का जो प्राइस होता है वो आम जनता ही को जनरली पे करना पड़ता है दैट इज व्हाट इट इज सेइंग the government of India has thrown full support behind Israel no doubt but has done convinced by the brutality of attack by Hamas and all so these are the things but at the same time yes so yes we have condemned the attack and all but at the same time India has said that India supports establishment of independent state of Palestine that is what I hope you are aware of this कि India's foreign ministry spokesperson Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗥𝗲 said इनको पहचानते हो ना he is actually the spokesperson of Ministry of External Affairs I hope you are aware of that yes now actually ये इसी के context में two state solution इसको पढ़ना थोड़ा सा two state solution where both Israel and Palestine should be recognized as a country and separate country and all तो इसी का बात है India supports establishment of independent है ना इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है ना देखो ये वर्ड यूज किया है जो कोर्ट में लिखा है सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सो दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड है ना इसलिए देखो कोर्ट में लिखा हुआ है ना सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस वगैरह है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल देखो वन ऑफ द रीजन क्या है जैसे वी आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद अदर अरब नेशंस देखो यहाँ मैप नहीं बना हुआ कहां चला गया ओके देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे सऊदी अरब है जॉर्डन है ऑन ऑल तो उसमें ये है कि ऑफ कोर्स व्हाई वी हैव टेकन दिस स्टैंड बिकॉज वी हैव गुड रिलेशंस विद अदर अरब कंट्रीज यूएई से हम लोगों ने सीपा साइन किया है ना इवन फ्रॉम सऊदी अरब आल्सो वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप रिसेंटली द सऊदी अरब किंग केम टू इंडिया आफ्टर द G20 समिट देयर वर लॉट ऑफ टॉक्स है ना फिर यूएई से तो खैर आपको पता ही होगा सीपा एग्रीमेंट है और भी बहुत सारा एग्रीमेंट है ना सो इंडिया इज हैविंग आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूएई these things you should be knowing it so yes so we have to balance it है ना so and we import a lot of oils also from these countries तो बहुत सारी चीजें इसलिए that is why India has taken this stand as well okay yes तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ना और कुछ चीजें जैसे मैड्रिड कॉन्फ्रेंस है ऑस्लो अकॉर्ड है ठीक है एक और कैंप डेविड समिट हुआ था एक तो ओरिजिनल है 1978 वाला उसके बाद भी हुआ था तो ये वाला मैड्रिड कॉन्फ्रेंस और ऑस्लो अकॉर्ड पढ़ना थोड़ा सा ठीक है बिकॉज दीज टू आर एक्चुअली की टू दिस है देन सारी नुसेबा वही जो ऑथर का नाम जो हेडलाइन में मेंशन था which we have talked about he is actually a Palestinian professor and all है ना so he wrote a book called as what is a Palestinian state worth and all so that is what he is quoting this author and all okay around freely within however the governing groups in the country primarily interested in remaining power generate strong patriotic fervor to the extent of assimilating the people and all तो अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है if the state knows that it will not and cannot achieve its objective and still persevere in its objective it will be acting immorally and ethically according to Nusayba तो ये बताइए रहे कि हाँ दोनों कंट्रीज का जो टारगेट है जो चाहते हैं वो शायद नहीं अचीव हो पाए इसीलिए फिर उसके पीछे लगे रहना शायद ठीक नहीं ये सब अब इतना इसमें डिटेल नहीं जाना देखो ये ओपिनियन है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ओके तो एग्जाम में तो ओपिनियन पूछते नहीं आपसे वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते इसलिए हम ओपिनियन में बहुत डिटेल नहीं जाते ठीक है दीज आर देयर ओपिनियंस कि pushed into the sea neither Israel देखो लिखा ना Israel equally knows that the ideology behind Hamas cannot be eliminated nor can Hamas as an entity and all मतलब दोनों के एक दूसरे को पता है कि वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते ये कहना चाह रहे हैं नुसेबा के हिसाब से ओके अकॉर्डिंग टू नुसेबा
both knows each other that they cannot destroy each other. So यही सब है, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं लड़के and all these other things being talked. खैर ये सब opinion है, these are the opinions of different scholars. You can disagree, agree, और opinions तो ऐसे भी एग्जाम में पूछते नहीं. आपको करना यह है कि ये सब पढ़ना है, जैसे इजराइल का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है ना. देन पास्ट में पूछेंगे, जैसे ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में ईयर पूछ सकते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड पूछ सकते हैं, इजराइल की बाउंड्री कहाँ कहाँ टच करती है, इजराइल के आसपास जो जो वाटर बॉडी है इजराइल और पैलेस्टीन के आसपास, जॉर्डन रिवर इज देयर, मेडिटेरेनियन सी इज देयर, ठीक है, और भी कोई गल्फ ऑफ अकाबा इज देयर, ये सब पढ़ना है, ठीक है. सो फैक्ट चीज पूछते हैं, द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड. सर व्हाई सऊदी अरब सपोर्ट पैलेस्टाइन इज इट फुलफिल, उसके एक्सप्लेन करना पड़ेगा द फ्यूचर, उसको एक लाइन में नहीं बता सकता है. इन द टॉपर्स बैच आई गेस आई विल बी डिस्कसिंग इट, इजराइल पैलेस्टीन, बिकॉज ये न्यूज में, ठीक है, वहां पे बता दूंगा. द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड. अब देखो इससे पहले चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं. वर्ल्ड फूड डे इज ऑन विच डेट? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर. व्हाट इज द राइट आंसर? वर्ल्ड फूड डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? बताइए. तो ये तो आसान क्वेश्चन होगा फुली. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वर्ल्ड फूड डे इज ऑन. यस, आज के दिन है, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. यस प्रिया, चवन, 𝗟𝗏𝗴𝗃. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे? Your options are water is life, water is food, food humans first requirement, food tasty and healthy, food is healthy, food is food is life, food is healthy. What's the right answer? Theme of World Food Day. ये जो एडिटोरियल था उसमें फर्स्ट पैसेज में they have discussed it. Yes, Priya, Chavan, Nandita, 𝗟𝗏𝗴𝗃, शुभराज द्विवेदी. हाँ, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड. सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी बताया था. देखो अगर वो सिमिलर ऑप्शन लगे ना, उस दोनों में से कोई एक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है. हालांकि ये दोनों भी सिमिलर था उस हिसाब से, बट यस द राइट आंसर इज ए, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड इज द राइट आंसर. द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे इज 16 अक्टूबर. वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड. तो एक्चुअली इफ यू सी द CLAT 2021 पेपर, दे हैव आस्क्ड 2 पैसेज बेस्ड ऑन डेज एंड थीम्स. 2 पैसेज पूछा था उन्होंने. इसका मतलब वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, so the theme of World Food Day, water is life, water is food, calls for an urgent action in managing water wisely, है ना. तो ये कहा गया कि वाटर को देखो, आप फूड से वाटर का भी लिंकेज है. वो वर्ल्ड फूड डे की बात कर रहे हैं लेकिन वाटर की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज आप खाना पकाओगे कैसे. सो फॉर मेकिंग फूड वाटर इज नेसेसरी. बिना पानी के खाना नहीं बनाया जा सकता है ना. खाना में पानी डाला ही जाता है जब भी आप चावल दाल कुछ भी बनाते हो. यस, availability or a lack of water has become even more critical with increasing climate extremes. तो बता ये रहे कि जैसे climate extremes आ रहा है, for example we are seeing global warming causing climate extreme, drought, floods और पता नहीं क्या क्या आ रहा है. So earthquakes and all. So these things are also causing more shortage of water. इससे पानी की समस्या बढ़ सकती है ना. Then countries face severe challenges such as drought, floods, unseasonal rain and prolonged dry spells and all, है ना. Then they are talking about this. अच्छा आप एक चीज बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग SDG टॉक्स अबाउट जीरो हंगर? SDG 1, 3, 5, none of the above. What is the target? जीरो हंगर की बात कौन सा SDG करता है? थोड़ा सा सोच के आंसर कीजिएगा. थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन एक्चुअली. यस, आई हैव गॉट द राइट आंसर फ्रॉम 𝗟𝗏, बट ही डिलीटेड इट. आई डोंट नो व्हाई. यस, नंदिता इज राइट. यस, 𝗟𝗏 पूनावाला राइट. डी इज द राइट आंसर. नन ऑफ द अबव. देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर इज SDG 2. तो मैंने जानबूझ के इसको नन ऑफ द अबव में डाल दिया है, SDG 1 लिख दिया. देखो एक्चुअली नो पॉवर्टी और जीरो हंगर लिंक्ड है. ये बात सही है कि पॉवर्टी और हंगर का रिलेशन होता है, बट चूंकि जब साफ जीरो हंगर पूछा जा रहा है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी SDG 2. So D is the right answer to this question, है ना. तो देखो लिखा less than 7 years left to achieve UN Sustainable Development Goals. तो SDG का जो टारगेट है वो 2030 में अचीव होना चाहिए, है ना. And we are in 2023, half of 2023 is gone, है ना. So less than 7 years बचा, नहीं 7 साल से भी कम का समय बचा है to achieve the target of SDG, right, है ना.
दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. उसके लिए देन वी हैव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? गो एंड फाइंड आउट. ठीक है, These are the things. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज देयर एंड ऑल. तो फूड से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे एफर्ट्स हैं. देखो अब क्या वो बात कर रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फूड एंड न्यूट्रिशन. तो वही बता रहे हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड ऑल्सो, खाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और क्या चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए. अरे एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए बिना पानी के, बिना इरिगेशन के इट्स नॉट पॉसिबल. इफ देयर इज नो रेनफॉल, इफ देयर इज नो इरिगेशन, देन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी देयर. एग्रीकल्चर उगेगा ही नहीं, है ना. खाना पकाने में पानी की जरूरत पड़ती है, और खाना यानी चावल दाल उगाने में भी, है ना. हाउ देखो क्या लिख रहे हैं, 60% ऑफ नेट सोन एरिया इज रेन फेड इन इंडिया. लगभग 60% एरिया जो है रेन फेड यानी बारिश के भरोसे. मींस वी आर नॉट डिपेंडेंट इन दी 60% विद इरिगेशन. ओनली 40% एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन एंड ऑल. तो ये पूरी तरह बारिश के भरोसे है. Okay, however, rain-fed agriculture depends directly on water availability, and rain and soil moisture variation can severely affect and food and nutrition and all. जब 60% rain-fed dependent है, if there is rainfall affection, जैसे for example El Nino happens in South Pacific Ocean, what will happen? Rainfall will decrease in southwest monsoon will become weaker in India. Rainfall will decrease, so it might affect agricultural productivity in India, which will cause food security issues, which will might increase the prices of food and all, है ना. So there is an urgent need to adopt climate change by promoting technology and practice that make rain-fed production more resilient and sustainable and all. तो ये बता रहे हैं कि और हमको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जिसकी वजह से एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर हो सके. जैसे बहुत फेमस एग्जांपल दिया था ये वाला ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन का. ठीक है, हाँ, FAO का हेडक्वार्टर रोम है. वेरी गुड काव्या शुभराज, वेरी गुड, है ना, द फ्यूचर. अब देखो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इरिगेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना. इसमें होता ही है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर होता है. मतलब ऐसा कहा जाता है वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कम से कम पानी बर्बाद हो और ज्यादा अच्छे तरीके से इरिगेशन हो. देखो ऐसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इस तरह का होता है. ठीक है, शायद कोई लोग गांव के होंगे, विलेज एरिया के होंगे, तो आपको शायद पता भी हो ये सब चीजें. डिकेड्स ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट, मिसयूज एंड पॉल्यूशन एंड द क्लाइमेट क्राइसिस हैव डिग्रेडेड फ्रेश वाटर सप्लाईज एंड इकोसिस्टम. तो अब ये बता रहे कि कई सालों से चूंकि वाटर मैनेजमेंट कई बार अच्छे से नहीं हुआ, इसके कारण बहुत पानी बर्बाद भी हुआ है. सो विच शुड नॉट हैपन. यस, वी हैव टू यूज इट इफेक्टिवली, है ना, विदाउट वेस्टिंग द वाटर. Adding to the vulnerability of small scale produces climate shock and land degradation in some of the world's most fragile ecosystem. Fragile मतलब होता है नाजुक के सेंस में कि अगर थोड़ा सा भी इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए, थोड़ा सा भी ग्लोबल वार्मिंग का असर आ जाए, या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इट विल इम्पैक्ट द इकोसिस्टम. जैसे आपने सुना होगा कोरल्स आर कंसिडर्ड एज वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, है ना. थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो कोरल बर्बाद हो जाएगा, है ना. थोड़ा सा ज्यादा फ्लड आ गया या थोड़ा सा कुछ हो गया, दैट्स द आइडिया अबाउट इट. तो वही बता रहे हैं, अबाउट 40% ऑफ प्लैनेट टोटल लैंड एरिया इज डिग्रेडेड, लीविंग फार्मर्स विद लेस प्रोडक्टिव लैंड एंड ऑल. देखो डिग्रेडेड मतलब वही है कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि अर्लियर द लैंड वाज फिट फॉर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, नाउ इट इज अनफिट. ठीक है, तो ऐसा जैसे फर्टाइल लैंड है जहां आप एग्रीकल्चर उगा सकते हैं, फिर डिग्रेडेड लैंड होता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, वो एक यहां तक आ जाता है जो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, पूरी तरह डेजर्ट बन जाता है. अब इसमें पॉसिबल ही नहीं है एग्रीकल्चर उगाना. These things do happen. तो वही बोले कि डिग्रेडेड मतलब है कि वो क्वालिटी ऑफ द लैंड इज डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ मे बी सैलिनिटी की वजह से, मे बी ओवर इरिगेशन की वजह से, मे बी अंडर इरिगेशन की वजह से, या मे बी बिकॉज ऑफ अदर क्लाइमेटिक स्ट्रेस एंड ऑल, है ना. यस, small scale farmers who make more than 80% of farmers globally are especially affected as they often lack access to finance and all, है ना. तो जो स्मॉल स्केल है, जैसे 80 से 85% जो फार्मर्स जो कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल है, छोटे लेवल की, उनको और ज्यादा असर करता है. बिकॉज जो गरीब लेवल के फार्मर्स हैं वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी. अब जो रिच फार्मर है वही ना अफोर्ड करेगा ट्रैक्टर लाना, टेक्नोलॉजी लाना, जनरेटर लाना, मोटर लाना, इरिगेशन करना. जो बेचारा एकदम गरीब है वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, है ना. सो फॉर दैट यस, कुछ स्कीम्स वगैरह जैसे आपको पता होनी चाहिए. एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, देखो ये वाला पढ़िएगा आप जाके थोड़ा सा. इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद इरिगेशन, एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड है. ठीक है, और स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए. कृषि सिंचाई ये मान ही बता रहा है, सिंचाई मीन्स इरिगेशन, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर रिलेटेड, है ना. एक ऑफकोर्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? प्लीज राइट इन द लाइव चैट, हु इज द मिनिस्टर, बताइए. एंड देखो ये सब और भी कुछ योजना है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, सो जैसे एक ये वाला बहुत फेमस है, मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ, PM किसान करके,
एक ये है ना, सो इनपुट के लिए पीएम किसान योजना करके, ठीक है, एक ये वाला बहुत फेमस है। फिर एक ई नाम है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना इफ पॉसिबल, गो एंड रीड इट, है ना। फसल बीमा इज क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, अगर क्रॉप जल गया या क्रॉप नहीं हुआ तो उसके लिए इंश्योरेंस है। सो दीज आर द थिंग। यस, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इज द जल शक्ति मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब बात हो रही, तो ये सारी बात इसी से एसोसिएटेड है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड वेरिएबिलिटी आर सीवियरली अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये तो मैंने बता दिया ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे एल नीनो हो गया, या अगर ड्रॉट आ गया, कहत आ गया, या बहुत हैवी, बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा ही रेनफॉल हो गया, वो भी खराब है, वो भी अच्छा नहीं है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज 2050 एंड 2080, है ना। तो ये सब है। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ऑल। अब देखो इसमें परसेंटेज नहीं याद रखना है, इसको बैठ के रटना नहीं है कि कितना परसेंटेज है, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना, कि रेन फेड राइस मतलब क्या, रेन फेड मतलब जो एग्रीकल्चर मतलब रेनफॉल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, जहां इरिगेशन की फैसिलिटी ना हो, दैट्स रेन फेड एग्रीकल्चर, है ना। और देखो एक चीज आपको शायद पता होगा, राइस में वाटर की बहुत जरूरत पड़ती है ना, इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। सो इफ यू आर फ्रॉम विलेज एरिया यू मस्ट बी नोइंग इट, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है राइस में, है ना, एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, है ना। सो इरिगेशन कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव मेजर्स, तो वही बता रहे कि इरिगेशन से कुछ चीजें बेटर की जा सकती है ना, बट वी हैव टू कंट्रोल इंश्योर दैट वेस्टेज ऑफ वाटर शुड नॉट हैपन। पानी बर्बाद भी नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज फिर ग्राउंड वाटर पर असर पड़ जाएगा। अगर आप इरिगेशन कर दियो, पानी जमीन से निकाल रहे हो, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा तो और दूसरी समस्या हो जाएगी, है ना। सो दैट इज एक्चुअली द चैलेंज एंड ऑल, है ना। दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉकिंग अबाउट, है ना। फिर एक देखो वो फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक वाटर स्कूल प्रोग्राम है, देखो इन उत्तर प्रदेश लिखा है ना, वाटर स्कूल प्रोग्राम। अब इसके बारे में थोड़ा सा पता करना कि इसमें क्या क्या सिखाते हैं। मे बी दे माइट बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू यूज वाटर इफेक्टिवली एंड ऑल, ये सब चीजें होंगी, है ना, फार्मर के लिए कि किस तरह यूज करें ताकि इरिगेशन कर सके, पानी कम से कम बर्बाद करके वेस्ट किए, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। हाँ, ये तो हमने बता दिया है ना। टू अचीव ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पॉलिटिकल कमिटमेंट इज नीडेड। हाँ, पॉलिटिकल कमिटमेंट इज ऑल्सो नीडेड, यानी पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल विल होना चाहिए। सो एवरी स्टेट में जो पॉलिटिशियंस है, जो मिनिस्टर कंसर्न है ना, और पॉलिटिकल विल प्लस ब्यूरोक्रेट्स यानी ऑफिसर्स का भी विल होना चाहिए, है ना, दोनों होना चाहिए। दे शुड एक्चुअली बी विलिंग, है ना, यानी एकदम दिल से चाहत रखें कि हाँ हमको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है ना। दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, है ना। ओके, नाउ ओलंपियन हाइट्स। अब देखो एक ये आर्टिकल थे, आई होप यू आर अवेयर, इंडिया विल बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स सेज पीएम मोदी, है ना। आपने देखा होगा ये वाला कि इंडिया विल कोशिश करेगा कि 2036 में हम लोग ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करें। ओके, तो इसमें जो है कुछ एडिटोरियल है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। फ्रॉम टाइम इमोरियल ओलंपिक्स हैज बीन सीन एज अ सॉफ्ट पावर मीडियम। ओके, अच्छा आप ये बात समझते हो, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय जोसेफ नाई, यू मस्ट हैव हर्ड दिस। तो इसमें होता क्या है कि एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ हार्ड पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर से भी होता है। मतलब ये है कि अ कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कंट्री है, तो एक तो हार्ड पावर है, मिलिट्री से इन्फ्लुएंस करेगी दूसरे कंट्री को। दूसरा लेकिन सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस भी होता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया सॉफ्ट पावर एग्जांपल क्या होगा, जिससे हम दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेपन। जैसे इन्फ्लुएंस कैसे, योगा है, बॉलीवुड है, और क्या क्या हो सकता है ना। फिर कल्चर वगैरह है ना, जैसे योगा से करते हैं दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस। बॉलीवुड सिनेमा का बहुत इंपैक्ट है अदर देन इंडिया, है ना, मतलब दूसरे कंट्रीज में भी, है ना। देन क्रिकेट से भी होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर इंडिया कोई ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेगी, अगर ओलंपिक्स, उससे भी सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस होता है ना। जैसे ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करा गया तो बाहर के लोग आए, ठीक है, तो हम लोग उनको अच्छे से बुलाएं, मिले, बात करें। सो दैट्स एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट, यस ओके वी आर वेरी हॉस्पिटेबल, है ना। सो दीज आर द थिंग्स, है ना। सो वही बता रहे हैं कि एक ओलंपिक से एक फायदा तो ये होता है कि सॉफ्ट पावर स्ट्रांग होता है ना। फिर वो एग्जाम्पल वगैरह बता रहे हैं, जैसे दैट इंडिया हैज आल्सो एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यूथ ओलंपिक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जैसे है ना कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप, पोस्ट अपार्थिव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील ऑफ 20 vivid examples. Prime Minister Modi announced in Indian International Olympic Committee session that we would leave no one stone unturned to organize 2036 Olympics and all. तो ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ओलंपिक्स करा सके, है ना। लेकिन उसमें और भी बहुत चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब उसका दूसरा एस्पेक्ट भी बता रहे हैं जो उन्होंने बताया है। इसमें ये बताया कि हाँ इसमें खर्चा बहुत होता है, एक्सपेंडिचर इज वेरी हैवी। जैसे उसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में होने वाला था 2026 का
आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला था, बट दे हैव विथड्रॉन। व्हाई? माउंटिंग एक्सपेंडिचर। तो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि हाँ एक्सपेंडिचर भी बहुत हेवी होता है। तो दोनों चीज, एक तो बेनिफिट ये कि सॉफ्ट पावर होगा, है ना, बट उसका दूसरा एस्पेक्ट ये कि एक्सपेंडिचर हेवी होगा, एंड दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। ओके, सो दीज आर द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, खैर इसको पढ़ लेना। इसमें क्या है, अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल, है ना, फ्रॉम इंडिया इन ओलंपिक्स। द सेकंड वन वाज नीरज चोपड़ा। आई होप यू आर अवेयर, ये सब चीजें वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स एंड ऑल, है ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोजिंग द जेंडर पे गैप इन द वर्कफोर्स। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इज पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये कहां मिलेगा आपको? योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 39 कैपिटल ए, 42, 47, 39। कहां मिलेगा आपको ये लाइन? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेल और फीमेल को अगर दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए? Which article talks about? Yes, DPSP में yes ना देता, you are right. But which article? देखो मैं बता रहा हूँ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल न्यूज में था। फिर अभी जो रिसेंटली नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है ना, वो इसी फील्ड में रिसर्च के लिए मिला है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। सो क्या चीज के लिए मिला है? फॉर रिसर्च ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन, इसी के लिए मिला है ना। आई होप आपको पता होगा शायद। हाँ, सो द राइट आंसर इज 39. Yes, Nandita is right. Nandana, Nandita, you all are right. This the future. 39 is the right answer. अच्छा, 42 भी कुछ लोगों ने लिखा, ये भी वुमेन से ही रिलेटेड है, मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है, तो ये भी इनडायरेक्टली उसी से रिलेटेड है। और 39 ए तो मैंने बताया है, नालसा लीगल सर्विसेज एक्ट एंड ऑल, फ्री लीगल एड, ये मैंने बताया ना। 39 ए का भी, 39 ए का है ना। तो 39 जो है, आर्टिकल 39 में बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, द मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी वगैरह होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिड्यूस करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। 39 कैपिटल ए जो है वही फ्री लीगल एड की बात है, जिसमें लोक अदालत आ गया। यस, वेरी गुड, समवन हैज रिटन। यस, अरवा पूना वाला गुड। नालसा हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग मेंशन्ड। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, काव्या। यस, देन आर्टिकल 42 भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, अगेन वुमेन से रिलेटेड है। मेक प्रॉफिट फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो उसके लिए एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया। एंड 2-3 फ्यू इयर्स बैक एक्चुअली वी हैव सीन द अमेंडमेंट, 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें फॉर इनिशियल 2 चाइल्ड द पेड मैटरनिटी लीव इंक्रीज फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक। सो 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। ठीक है, ये आर्टिकल 42 का एक तरह से आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन है ना। ओके, तो वही बता रही थी क्लॉडिया गोल्डन। सो शी इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड शी हैज डन इन रिसर्च अबाउट द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि लेबर फोर्स में वुमेन की क्या कहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है ऑल, मतलब कहाँ कितनी आबादी है, कितनी पार्टिसिपेशन है, परसेंटेज एंड ऑल, है ना। When women were missing from labor force, that was because they were home caring for children. When they are paid less, that was because their education is lower than men. तो यही बता रहे हैं कि जब पहले वुमेन जो है नहीं काम करती थी, तो उसका वजह ये बताया जाता था कि घर में बच्चों का ख्याल रख रही है, और बाद में जब सैलरी कम दिया जाता है तो दलील ये दिया जाता है कि उनकी एजुकेशन कम है। सो दीज आर एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट्स शी इज पुटिंग इट, की दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन एंड ऑल। इसमें बहुत डिटेल में गई, इतना डिटेल नहीं जाना है। द फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट, देखो फेमिनिज्म पर भी थोड़ा सा चुके हैं, तो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ फेमिनिज्म? योर ऑप्शंस आर बेटी फ्रीडन, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, सिमोन द बोवेर, सिंथिया इनलो। देखो एक्चुअली चूंकि इतना फेमिनिज्म वगैरह की बात आ रही है, इसीलिए मैं बस पूछ रहा हूँ। ठीक है, बस एक बेसिक फैक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए। सर आर्टिकल आएगा क्लैट में? देखो अभी तक आर्टिकल्स पूछा नहीं है द फ्यूचर, बट अदर लॉ इंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, जैसे जामिया, एमएचसीटी, ये सब में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले। मतलब इधर जो 2020 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट मे भी देखे ना। हाँ, सो देखो ये चारों लोगों ने, द ऑल 4 आर एक्चुअली द चैंपियंस ऑफ फेमिनिज्म। दे हैव रिटन अ लॉट, देयर राइटिंग्स इज ऑल अबाउट द फेमिनिज्म एंड ऑल। बट मदर ऑफ फेमिनिज्म जनरली मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को कहते हैं। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जैसे अभी बेटी फ्रीडन को कोट करें 1963, तो अभी सब इतना रटना नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स कौन है और रीजन क्या है विनिंग का। सो रिसर्च ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इतना काफी है।
हाँ यस ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ आई थिंक। इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है। तो उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है एंड ऑल, बहुत डिटेल थोड़ी पूछेंगे इतना कि क्या क्या रिसर्च किया है एंड ऑल। ओके, एक पिंक कॉलर वर्कर होता है, इसको पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स कहते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, जस्ट गो एंड रीड इट। इसकी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वगैरह भी, बट गो एंड रीड अबाउट दिस। फ्यू कम क्लोज टू द हिटमैन इन वर्ल्ड कप क्रिकेट एंड ऑल। अच्छा, ये सब चीज तो आपको पता है, ये एक्चुअली हिटमैन इज रेफर्ड टू एज आई थिंक रोहित शर्मा को कहते हैं ना, ठीक है। रिसेंटली मैच हुआ था, आई होप यू आर अवेयर, इंडिया पाकिस्तान मैच हैपन इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये एक्चुअली मैंने किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन आया था कि द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यू विल फाइंड इट इन अहमदाबाद। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट? 1,32,000, 85,000, 1,12,000, 1 लाख। बताइए, कोई बता सकता है? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम? दिस वाज नॉट आस्क्ड इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट मैं किसी और जगह एग्जाम ये पूछा था, नॉट इन लॉ एंट्रेंस बट इन सम अदर प्लेस। ठीक, पता होना चाहिए। यस, 1,32,000, गुड। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट, है ना। सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 1,32,000 लोगों की है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड है, हो गया, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सेंटर देखो, एक तो है कि 2 फ्लाइट्स ऑपरेशन अजय, ये तो आपको पता है ना, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। Then center likely to raise age of retirement of scientists to 65, और एक है former chief election commissioner dead, तो ये तीनों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट की एज जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, रिटायरमेंट एज की एक्चुअली। सो बेसिकली एट प्रेजेंट द साइंटिस्ट एक्चुअली मोस्टली रिटायर इन 60 years, while those working in Indian Council of Agriculture Research and ICMR they retire at 62। तो जनरली चाहे तो 60 या 62 में रिटायर कर जाते हैं, बट द गवर्नमेंट इज प्रोपोजिंग टू इंक्रीज इट टू 65, ठीक है। Just have an idea. The next is M.S. Gill. He was the ex-chief election commissioner, and he died actually. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। And he was actually उनको कुछ मिनिस्ट्री वगैरह मिली थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल he was a minister of sports and youth affairs also, ministry of statistics, must be when Manmohan Singh was the in the government of Manmohan Singh, when Manmohan Singh was the prime minister, he served as sports minister as well as must be समझते हो ना, ministry of statistics and program implementation, है ना। ओके, सो दीज थिंग्स, है ना, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, है ना। ये पता है, ब्लिंकन raises Hamas issue with Saudi leader and also Blinken, who is actually Anthony Blinken, I hope you are aware, he is the US Secretary of State, he is in Saudi Arab meeting the Saudi king and all, crown prince and all, ठीक है। so इसमें कुछ बात वगैरह हुई, so let's see what will happen, है ना। So here is Saudi Arab, here is Israel. आपको अब्राहम अकॉर्ड वगैरह पता है, यूएई और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड वाज साइंड एंड ऑल, I hope you are aware of that. And recently one of the minister of Israel visited Saudi Arabia on 26 September, just before the war started and all. So these things were also in the news and all, okay. और एक चीज और है, वन शॉट रिविजन सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ वन शॉट रिविजन में जाना, यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट है, क्लिक ऑन इट and these are the revision series we are running it, okay, so please watch it, that would be very very beneficial। इस तरह के और हम लोग सीरीज लेके आएंगे, so that it would be very beneficial for you। So this is all about today's class. Thank you everyone, thanks for watching, please subscribe to our channel, follow us on Instagram। और आज चूंकि ऐप है, मंडे है, so download our app, go to CLAT section, I will be meeting you at 6 PM today, okay, for revision of questions, है ना, important questions। So do join me on today our app at 6 PM। Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day।